स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। आज हम लोग को साथ लिखना था। हेडिंग लिखिएगा बच्चों, फॉरवर्ड बायस और एक तरफ रिवर्स बायस। एक तरफ फॉरवर्ड बायस एंड दूसरी तरफ रिवर्स बायस। तो पहले फॉरवर्ड बायस की तरफ लिखिए पहला पॉइंट। पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा, ठीक है। When P region of PN junction, when P region of PN junction is connected to the positive terminal of a battery, when P region of PN junction connected to the positive terminal of a battery and N region to the negative terminal of a battery, and N region is connected to negative terminal of a battery is called forward bias. Is called forward bias. पहला फिगर बनाने के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। अब रिवर्स बायस में लिखिए। पहला वाला यहां जो फिगर दिख रहा है उतना बनाने के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। रिवर्स बायस में पहला पॉइंट लिखिए। When P region is connected to the negative terminal of a battery, when P region is connected to the negative terminal of a battery and N region is connected to the positive terminal of a battery, N region is connected to the positive terminal of a battery is called reverse bias. इसमें भी पहला फिगर बनाने के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा। एक और डेफिनेशन, जगह छोड़ दीजिएगा फिगर बनाने के लिए। पहला वाला जैसा फिगर दिख रहा है यहाँ पर, दोनों का पहला फिगर देख लीजिए कितना बड़ा जगह छोड़ना होगा, छोड़ लीजिए उस हिसाब से। सेकंड पॉइंट लिखिएगा फॉरवर्ड बायस के अंदर, when P region is maintained at higher potential, when P region is maintained at higher potential with when P region is maintained at higher potential with respect to N region, is called forward bias. Is called forward bias. रिवर्स बायस में लिखिएगा सेकंड पॉइंट, when P region is maintained at lower potential, when P region is maintained at lower potential with respect to N region is called reverse bias. चलिए पहले पॉइंट में पहला वाला फिगर बना लीजिए, दूसरे पॉइंट में दूसरा वाला फिगर बना लीजिए, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस दोनों का। उसको एक बार दोहरा लेते हैं। थर्ड पॉइंट में मैंने बताया था जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो जंक्शन की तरफ मूव करते हैं, जिसके वजह से डिप्लीशन रीजन विड्थ डिक्रीज होता है। जब डिप्लीशन रीजन विड्थ डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी कम होता है और यहाँ पे आउटपुट में हमको ज्यादा करंट दिखाई देने लगता है, ठीक है। और रिवर्स बायस में क्या बोलेंगे कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो जंक्शन से दूर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन विड्थ बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाता है। और वहां जो थोड़ा बहुत करंट दिखाई देता है वो किसके वजह से दिखता है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन। वो छोटा बहुत स्मॉल करंट जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो लिखो पहले फॉरवर्ड बायस के अंदर लिखो, इन फॉरवर्ड बायस the majority charge carrier from both the region moves towards the junction
due to which the depletion region width decreases, due to which the depletion region width decreases, and hence junction offers low resistance, and hence junction offers low resistance, offers low resistance. ठीक है. Here we use milliammeter. Here we use milliammeter to measure the current. है ना, मिलीमीटर यूज करते हैं. ठीक है. रिवर्स बायस में लिखो. थर्ड पॉइंट रिवर्स बायस के अंदर. इन रिवर्स बायस the majority charge carrier, in reverse bias the majority charge carrier, in reverse bias the majority charge carrier moves away from the junction. जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर वो जंक्शन से अवे जा रहे हैं, moves away from the junction, due to which the depletion region width increases, due to which the depletion region width increases, and hence junction offers high resistance, and hence junction offers high resistance. Full stop. Here small current exists. Here a very small current exists due to the movement of minority charge carrier. Here very small current exists due to the movement of minority charge carrier across the junction. Movement of minority charge carrier across the junction. Full stop. Here we use microammeter to measure the current. Here we use microammeter to measure the current. अब ये फिगर बना करके नीचे जो लिखे हैं नोट में नोट कर लीजिए फटाफट. फोर्थ पॉइंट हमारा होगा. फोर्थ पॉइंट में इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. ध्यान से सुनो पहले भी. फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के बीच का ग्राफ, और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है रिवर्स का करंट एंड रिवर्स वोल्टेज के बीच का ग्राफ. इस ग्राफ को मैंने आपको समझाया था कि ये जो ग्राफ होता है कैसा होता है? नॉन लीनियर होता है. नॉन लीनियर समझते हैं? यस नो बोलो. नॉन लीनियर का मतलब ये लीनियर नहीं होता. जब भी आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसा ग्राफ आपको दिखाई देगा. अब कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है एग्जामिनर कि बताओ इस ग्राफ में आप मुझे पहले नी करंट बता दो. क्या नी वोल्टेज क्या होता है? नी वोल्टेज ये एक ऐसा वोल्टेज दिखाई दे रहा है जिस वोल्टेज पर करंट की वैल्यू क्या होगा? लीनियरली बढ़ रही है, बहुत तेजी से सीधा बढ़ रहा है ऐसे. देखो तो ऐसे वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? नी वोल्टेज. क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज. नी वोल्टेज हमेशा किस में दिखाई देता है? फॉरवर्ड बायस में. इट इज द वोल्टेज इन फॉरवर्ड बायस एट विच, जो करंट की वैल्यू देखो यहां पर, ये नी वोल्टेज एक ऐसा वोल्टेज जिसपे करंट की वैल्यू क्या बढ़ रही है? एकदम लीनियरली बढ़ती चली जा रही है ना. ऐसे वोल्टेज को क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज. KNEE. नी मतलब हाँ ठेवना जैसा मुड़ा रहता है इसे.
दूसरा होता है रिवर्स बायस में भी एक ऐसा वोल्टेज दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पे भी एक ऐसा वोल्टेज दिखाई दे रहा है जिस वोल्टेज पर करंट की वैल्यू क्या है, लीनियरली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मैं थोड़ा सा इसको करीब कर दूं, ऐसे ऐसे कर दूं, ऐसे देखो दिख रहा है क्या आपको, ऐसा दिख रहा है क्या? यहां पर भी एक वोल्टेज दिखाई दे रहा है जिस, ये देखो ये वोल्टेज दिखाई दे रहा है जिस वोल्टेज पर करंट की वैल्यू क्या है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो कभी कभी आ सकता है, व्हाट इज जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज? इट इज अ वोल्टेज इन रिवर्स बायस एट विच द रिवर्स करंट इंक्रीजेस लीनियरली। रिवर्स करंट क्या होगा, लीनियरली बढ़ रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। और जिसपे फॉरवर्ड करंट बढ़ रहा हो उसको हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। बात समझ आ गई? तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों ग्राफ बना करके जीनर वोल्टेज क्या है और नी वोल्टेज क्या है, बस प्लॉट कर लीजिए, इसमें दिखा दीजिए। बहुत लोग का ये प्रोजेक्ट रहा होगा। नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर, है ना? बहुत लोग का प्रोजेक्ट होगा, ओ सर रेक्टिफायर, रेक्टिफायर बहुत परेशान किया था कितने दिन से सर रेक्टिफायर। व्हाट इज रेक्टिफायर? फिजिक्स की भाषा में इसको रेक्टिफायर बोलते हैं, और घरेलू भोजपुरी भाषा में इसको हम चार्जर बोलते हैं। मोबाइल चार्जर देखा है ना, कोई भी चार्जर, बस चार्जर। आम भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं, चार्जर। चार्जर का काम क्या होता है, उसको तुम अपने बैटरी में लगाते हो या एसी में लगाते हो? एसी में लगाते हो ना। देखो यहाँ पे चार्जर, देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या, हमने इसको एसी में प्लग किया है और यहाँ कैसा करंट निकल रहा है। अगर एसी निकलता तो हम छूते तो अब तक हम कहां हो चुके होते, है ना? तो क्या एसी निकल रहा है यहां से? नहीं सर, यहां से क्या निकल रहा है, डीसी निकल रहा है। मतलब ये चार्जर क्या काम कर रहा है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम चार्जर करता है ना? यही काम रेक्टिफायर भी है। फिजिक्स की भाषा में चार्जर का नया नाम क्या है, रेक्टिफायर। तो व्हाट इज रेक्टिफायर? अ रेक्टिफायर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सी भाषा में। चार्जर का काम क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब कभी भी गलती से किसी का चार्जर खराब हो गया, है ना, ऐसा मत करना कि उसका यूएसबी केबल निकाले, दो तार काट के निकाल के डायरेक्ट एसी में प्लग कर दे। ऐसा करोगे तो आपकी मोबाइल की बैटरी फट जाएगी, और ये एक बहुत खतरनाक बम होता है। लिथियम आयन सेल जिसको हम लोग कहते हैं ना, बहुत अच्छा देखने में लग रहा है, ये अगर फटेगा तो एक आध दो लोग को तो ले लेगा बढ़िया से। इस रूम में जितने लोग बैठे हैं हम लोग तो सब के सब समझ लो। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये भाई साहब गलत वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ होगा। यूट्यूब बहुत अच्छा चैनल है, यूट्यूब बहुत अच्छा है। तो कहानी क्या है हमारे पास, सिंपल सी बात बता दो। रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम। अब हमारा जो रेक्टिफायर होता है ना बच्चों, नॉर्मली रेक्टिफायर हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन हमको पढ़ना है सिर्फ 12th में दो टाइप। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, और तीसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। अच्छा किस्म का जो रेक्टिफायर होता है उसको हम बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। वो भी क्या होता है वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, यहीं पर आपको दिखाऊंगा। और हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको दिखाने का प्रयास करना चाहता हूं कि आप, तो मेरे पास देखो ये एक मैंने बनाया है हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। यहां पे देखो एक सिंगल डायोड यूज किया हूं, यहाँ पे एक सिंगल डायोड यूज किया है ना। और ये हमारे पास कुछ टर्मिनल है, कैसे काम करता है अभी हम लोग वर्किंग देखेंगे तो समझ में आएगा। अब यहाँ पे 2 वायर है हमारे पास, ये देखो यहाँ पे 2 वायर मैंने निकाला, इन दोनों को मैं एसी में प्लग करता हूं और यहां से मुझे आउटपुट में डीसी दिखाई देने लगता है। कितने वोल्ट डीसी दिखाई देता है वो भी मैं अभी आपको लाइव अभी मेजर करके दिखा देता हूं, कितना वोल्ट डीसी से आपको आउटपुट मिल रहा है। डीसी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो भी मैं आपको दिखा दूं। अगर डीसी मिलेगा तो यहाँ बल्ब जलेगा, और डीसी नहीं मिलेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। और करंट ज्यादा मिलता है इसमें, हम दिखाएंगे करंट बहुत तगड़ा स्पार्क करता है। चंदन सर ने बनाया क्यों है, जुगाड़ पे इंडिया जीती है तो जुगाड़ पे हम भी थोड़ा बहुत जी लेते हैं, है ना। कभी कभी जैसे मेरी ठंडी के दिनों में स्पेशली हमने आपको पढ़ाया था कि ठंडी के दिनों में कार या बाइक की बैटरी
जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं ना, है ना। तो अचानक अगर मुझे कहीं निकलना पड़ता लंबी यात्रा के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कार की बैटरी को लगा देता हूँ चार्ज में रात में ला करके। पूरी रात भर में कार की बैटरी हो जाती है फुल, फिर सुबह एकदम कोई टेंशन नहीं, आराम से चल चलते हैं कहीं भी, है ना। तो ये एक चार्जर मैंने बना दिया, टेम्पररी चार्जर, जो आप लोग बैटरी चार्ज करने के काम आता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। तो आप लोग भी घर में बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत पीस में रखा होता है चार्जर बनाना। मैं भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, तो आज के आज आप चार्जर मेकर बन जाएंगे, है ना, कैसे ये काम करता है। ठीक, अब इसका कहोगे सर ये सही में आपका काम करता है कि सिर्फ झूठ मूठ का आप रखे हैं मॉडल, काम कर रहा है कि नहीं? मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, वेट वेट एंड वॉच। यहाँ देखो वोल्टेज कितना आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये मैं दिखाता हूँ एसी। अभी एसी में डायरेक्ट प्लग किया हूँ 220 के आसपास, एग्जैक्ट दिख रहा है। यस सर। मैं देखो डायरेक्ट एसी में प्लग किया हूँ, ये मल्टीमीटर मेरा काम कर रहा है। अब मैं चेक करता हूं, यहां लगाता हूं इस तार को, ये मेरा है डीसी, मेरा एक रेक्टिफायर। ठीक है बच्चों, मैंने इसको लगाया, ऑन किया। अब मैं इसको डीसी टर्मिनल पे ट्रस्ट करता हूं। ये आपको मैं मीटर भी ऐसे दिखा देता हूं, आपको शायद दिखेगा क्लियर। और डीसी पे इसको मैं करता हूं 20 वोल्ट के आसपास ऐसे मार्किंग, और मैं चेक करके दिखाता हूं आपके पास कितना मिल रहा है। कुछ वोल्टेज दिखेगा तो बताइएगा, सही से प्लग होगा तो दिखेगा। मल्टीमीटर कुछ गड़बड़ हो गया, नहीं काम कर रहा ना, यहाँ पे नॉब घूमना चाहिए, घूम नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ डीसी में कन्वर्ट हुआ क्या। ठीक है, स्पार्क करा कर दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, दिख रहा है आप लोगों को? ये देखो, ये देखो, ये डीसी में कन्वर्ट हो चुका है। और मैं चाहूँ तो मैं रिस्क लेता हूँ, बहुत महंगा चीज खरीद के लाया हूँ। ये मेरे पास नियॉन लैंप है, मैं इसे आपको जला के दिखाता हूँ। नियॉन लैंप, ठीक है, नियॉन लैंप ये। और मैं पहले चेक कर लूँ कि करंट कितना आ रहा है, पहले उस हिसाब से मैं आगे काम करता हूँ। नियॉन लैंप की भी क्या एम्पियर करंट हमको मिल रही है, चलो काम कर जाना चाहिए। देखो बच्चों, जलेगा, अगर डायरेक्ट एसी होगा तो ये फ्यूज हो जाएगा, डीसी होगा तो काम करेगा। कैसे दिखाऊं, यहाँ दिखाता हूँ, ये देखो, दिख रहा है आप लोग को जलता हुआ? ये देखो, तो ये देखो, ये ब्लिंक कर रहा है बराबर, जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है। इसका मतलब ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। ये अब दिखाएंगे क्या होगा, ये घटिया किस्म का रेक्टिफायर होता है। ये घटिया किस्म का होता है क्योंकि इसमें करंट आता है, फिर रुकता है, फिर आता है, फिर रुकता है। इसी वजह से देखो जो बल्ब की ग्लोनेस है क्या है, स्टेबल नहीं है। हाँ स्टेबल नहीं है। देखो, दिख रहा है आपके पास, है ना। अब लेकिन इसको मैं स्टेबल करके भी आपको दिखाऊंगा जब पढ़ाऊंगा फुल वेव रेक्टिफायर तक। समझ में आया रेक्टिफायर कैसे काम कर रहा है? या डीसी मिल रहा है, अगर एसी मिलता तो ये पूरा का पूरा हमारे पास ये जो नियॉन लैंप है मेरी पूरी की पूरी खराब हो जाती, फ्यूज हो जाती। ठीक है, ये बहुत महंगा लेके आया हूँ, बहुत ज्यादा कॉस्टली मिला हुआ है अपने कोचिंग का लोगो बनवाने के लिए।